Okay. Now, beta, the instruction part will be continuing further. Now, in the last lecture, if you all remember, in the last lecture, we saw the format of trading account, but that day we could only discuss the format. You people couldn't list it down. तुमने वो format लिखा नहीं था. So what I am doing is I am sharing my screen with you right now. Take up your notebook, pen, pencil. एकदम proper format मुझे चाहिए. Take up your pen, pencil, scale. I am sharing my screen. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम फिर से देख रहे हैं. तुम फटाफट अपनी नोटबुक में उसे लिखना शुरू करो. इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेन नॉट रिमेंबर्ड, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसका मीनिंग ये होता था, ये इस तरह से है. तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने जो लास्ट लेक्चर सीखा था उसका मैं पर्पस तुमको बता दूं. द ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपरेशन पर्पस इज टू फाइंड आउट आवर प्रॉफिट, कि हमने बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया. ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट से हमको वो पता चलेगा. एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वी वुड बी रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी वुड बी रिकॉर्डिंग ऑल द इनकम्स. तो वो एक बेटा रूल समझ लेना, वो एक रूल समझ लेना कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ऑन द डेबिट साइड वी वुड बी रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी वुड बी रिकॉर्डिंग ऑल द इनकम्स. let's begin. Take up your pen, pencil, start drawing the format. Beta, here you go. Give the heading in your notebook, specimen of trading account of Shri dash 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 for the year ending on dash dash dash. Come on. The specimen of trading account. Now the trading account which we have to make, that is always for a period of 1 year. Always remember. And that 1 year will begin from 1st of April and it will end on 31st March. Always it will be for 1 year, trading account. But on the debit side, we have purchase. On the debit side, we have opening stock. Then purchase में से purchase return minus किए. Then goods going out of the business because of any reason, that is goods destroyed by fire, goods given as charity, goods withdrawn for personal use, they are all going out of the business. But what was opening stock? I had explained to you last lecture. The opening balance of trading account. Then we have expenses which are related to purchase. We have expenses which are related to purchase. All the expenses we saw last lecture: wages, carriage inward, the transportation cost, railway freight, the amount of freight to be given to railways authorities for transporting goods from one place to another. Then octroi was the entry tax. Octroi was our entry tax. Then custom duties are import-export duties. Lorry freight was
the transportation cost if the goods are sent through truck, lorry, अगर हमने लॉरी से सामान भेजा है तो, then we have port charges, कि जहां पर बेटा शिप से अगर हमारा सामान आ रहा है तो हमने उसे पोर्ट पर रखने के लिए जो हमको चार्ज भरने पड़ेंगे, port charges. Then dock charges is for loading and unloading, the dock charges. Then we have clearing charges. We have clearing charges. एजेंट को जो हमने कहा है, एजेंट को कि भाई तुम हमारा सामान छुड़वा के लेके आओ, और एजेंट को जो हम पैसा देंगे, that are clearing charges. Then demurrage के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था. Demurrage, it's the penalty which is payable for the late removal of goods. The penalty paid for the late removal of goods from the godown of railway or from the port. The penalty paid for the late removal of goods. दरमायो is monthly wages या तो salary, दरमायो. Then खराजत expenses are wages incurred on repairing of goods. The wages expenses incurred on repairing of goods. Then wharfage was the difference of the freight which is payable. हमने अगर फ्रेट की गिनती में कम अमाउंट का कैलकुलेशन किया है, फ्रेट के कैलकुलेशन में हमने कम अमाउंट का कैलकुलेशन किया है, so that amount is to be paid, the difference amount which is to be paid is wharfage. Then Mahajan Lago is also an expense which is related to purchase. Mahajan Lago, महाजन लागो. बेटा इसके आगे जाने के पहले थोड़ा एक और एक्सप्लेनेशन अभी देना है मुझे. हमने अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम में एक नया अकाउंट बनाना सीखना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. नाउ टिल द टाइम आई डोंट एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टिल दैट टाइम अभी फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट के यू राइट नाउ इन द ट्रेडिंग अकाउंट. वो आप अभी ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कीजिए. वंस वी लर्न द फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, then all factory related expenses will shift to manufacturing account. लेकिन for the time being I haven't explained you what is a manufacturing account, so my request to you people is कि you right now learn that under trading account only, but once we do what is manufacturing account, પછી આપણે એને manufacturing account માં લખીશું, ત્યારે તમે બધું ભૂલી જજા કે એ ટ્રેડિંગ માં જાય, એ પછી બધું આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ માં લખશું. એટલે મહાજન લાગો પછી બધા તમે અગર એક્સપેન્સ જોશો, if you see those expenses, they are all related to production, they are all related to factory, and ideally it should go to manufacturing account. But for the time being, as we have not studied the manufacturing account, you post them in trading account. चलो लिखना शुरू करेंगे आगे. महाजन लागो પછી આગળ લખો, महाजन लागो પછી આગળ લખો. The expenses which are related to production, the expenses which are related to production, we have productive wages, we have productive wages. Then the next item, बेटा प्रोडक्टिव वेजेस के बाद वी हैव रॉयल्टी. बेटा रेज योर हैंड, कितनों को मतलब पता है व्हाट इज रॉयल्टी? रेज योर हैंड. बेटा वर्चुअल हाथ ऊपर करो, वर्चुअल हाथ ऊपर करो.
अर्शिता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अर्शिता, यस सर। अर्शिता, व्हाट इज रॉयल्टी बेटा? सर अगर कोई कंपनी कुछ बनाती है और उस पे जो ट्रेड पेटेंट करवाती है उस चीज का, तो अगर किसी कंपनी को उसको यूज करना है तो जो एक्सपेंस वो कंपनी अकर्ड करती है तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। एक एग्जांपल देके समझा। अर्शिता, गिव मी वन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन। सर जैसे वो हम कोई लैपटॉप पे चलाने के लिए जो पेन आती है, तो वो अगर किसी ने इन्वेंट की है, तो अगर किसी को वो यूज करनी है कंपनी को, अगर तो उस पे हमको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जो कंपनी एक्सपेंस करती है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। Okay, now can I give you one simple example? If I want to manufacture iPhone, मुझे अभी चाइना में मैन्युफैक्चर होता है आईफोन, इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। बट इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर आईफोन इन इंडिया, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे वो सारी टेक्निक, मुझे वो सारा टेक्निकल नो हाउ मुझे समझना पड़ेगा। और वो सब के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एप्पल कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी कि भाई तुम सारा टेक्निकल नो हाउ हमको दो, तुम सारी फैक्ट्री कैसे सेटअप करनी है उसका सब टेक्निकल नॉलेज हमको दो, और फिर हम तुमको मैन्युफैक्चर करके देंगे। सो इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर आईफोन, मुझे उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर एनी गुड्स जो ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी बना रही है, जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया है, और वही चीज मुझे अगर मैन्युफैक्चर करनी है, तो वो चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे उस कंपनी को रॉयल्टी भरना पड़ेगा। रॉयल्टी भरना पड़ेगा। जैसे ये कैशियो का कैलकुलेटर है, तो वो अगर मुझे बनाना है तो मुझे कैशियो कंपनी को अगेन रॉयल्टी देनी पड़ेगी। only I can do its production. So royalty is paid to a company so that I can take those production help. मैं वो प्रोडक्शन कर सकूं उस कमोडिटी का, इसलिए मैं वो रॉयल्टी पे करूंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। रॉयल्टी, आई सपोज सबको पता चल गया व्हाट इज रॉयल्टी। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। Then after the royalty we have factory expenses, that is rent, फैक्ट्री का रेंट, टैक्स, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, ये सारी चीजें फैक्ट्री में हो रही हैं इन ऑर्डर वी वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स, इसलिए ये सारे खर्चे हो रहे हैं। देन मटेरियल कंज्यूम्ड, ऑयल एंड ग्रीस, देन depreciation on factory building, plant and machinery, depreciation on factory building, plant and machinery, and then last we have gross profit. Now see, gross profit कब आएगा? When the total of credit side will be more. When your income side is more, your credit side is your income side. अगर आपके इनकम साइड का टोटल ज्यादा है एंड आपका डेबिट साइड एक्सपेंस आपके कम है, तो यू विल बी गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल कम ऑन द डेबिट साइड बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो वो डेबिट में लिख के जो बैलेंस बचता है दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ बेटा लेट्स गो ऑन टू द क्रेडिट साइड। इनकम साइड हम क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड हम क्या लिखेंगे वो लिख लेंगे फटाफट, चलो। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, लेस sales less sales return, मतलब what all goods are being sold minus sales return, and then closing stock and sale of scrap, closing stock and sale of scrap. Now closing stock is our closing balance, कि हमारा जो एट द एंड ऑफ द ईयर सामान सेल नहीं हुआ, द अनसोल्ड गुड्स आर टू बी टेकन फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। नाउ दोज अनसोल्ड गुड्स आर क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स आर क्लोजिंग स्टॉक। एंड लास्ट आइटम लिख दो ग्रॉस लॉस।
लास्ट आइटम लिख देंगे क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस लॉस कब आएगा? when the total of debit side, when the total of debit that is expense side का total जब ज्यादा है तब हमारा इनकम कम है। when the total of debit expense side total is more and our income are less, then we'll get gross loss। बेटा दोनों चीजें साथ में कभी नहीं आ सकती है, ये स्पेसिमेन है। so either you will get profit or you will get a loss, but in what circumstances you will get profit and loss वो आपको मैंने समझा दिया है, वो आपको मैंने समझा दिया है। अब बेटा जरा डेबिट साइड की कितनी आइटम्स हमने लिखी वो गिनो, मैं भी गिनता हूं तुम भी गिनो। डेबिट साइड हमने कितनी आइटम्स लिखी हैं? एक ओपनिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 then 21 22 23 24 25 26। बेटा डेबिट साइड लिख दो, डेबिट साइड पेंसिल से लिख दो। 26 आइटम्स है डेबिट साइड, 26 आइटम्स। एंड क्रेडिट साइड लिखो सेल्स रिटर्न 2 3 4 5। क्रेडिट साइड देयर आर 5 आइटम्स, डेबिट साइड 26 आइटम्स અને क्रेडिट साइड 5 आइटम्स। ओके, नाउ टोटल 31 आइटम्स टू बी लर्नड। बेटा आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, 15 मिनट में तुम्हें दे रहा हूं, फटाफट डेबिट के 26 आइटम, क्रेडिट के 5 आइटम लर्न करेंगे, फिर मेरे सामने तुम्हें उसे फटाफट लिखना है। ओके, અને લખીને તમને મારા નંબર પર વોટ્સએપ કરવાનું। મારો નંબર લખી લો પહેલા, સૌથી પહેલા मेरा नंबर लिखो 8877770404। 15 मिनट दे रहा हूं, मेरा नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं 8800770404। ओके, 15 मिनट के बाद तुम लिखना शुरू करोगे एंड वंस यू कंप्लीट दैट फिर मैं तुमको बोलता हूं कि उसका फोटो कैसे भेजना है। 15 मिनट फटाफट चालू करो, लर्न करना। 15 मिनट्स, जबरदस्त। स्कॉलर बैच, स्कॉलर बैच, फटाफट। 10:25 हुए हैं, 10:40 को हम लिखना शुरू कर देंगे। 10:25 થયા છે મારા ઘડિયાળમાં, 10:40 ના આપણે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશું। 26 આઈટમ ડેબિટ સાઈડ, 5 આઈટમ ક્રેડિટ સાઈડ। કમ ઓન।
बेटा एक्टिंग मत करो, सब ऐसा साला लिप मूवमेंट कर रहे, लिप मूवमेंट कर रहे हैं करके। पढ़ो सालो, पढ़ो ईमानदारी से, एक्टिंग कर रहे हैं। बेटा भक्ति की शक्ति पढ़ो। यशराज, यशराज अनम्यूट, यशराज अनम्यूट हो बेटा, अनम्यूट हो, अनम्यूट हो जा बेटा। यशराज अनम्यूट, अनम्यूट। एक बार दबाओ, एक बार दबाओ म्यूट का, एक बार वापस हो। बेटा हो नहीं रहे, तेरे तेरे को समझ में आ रहा है तो थम्स अप दिखा दे, चल म्यूट मत हो, थम्स अप दिखा दे, बढ़िया जोरदार, गजब है तू बेटा, गजब है। देन मेहलिका, ओपी मेहलिका, बेटा मेहलिका, इज इट अंडरस्टूड? या अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. बेटा इज इट अंडरस्टूड द फॉर्मेट? Yeah. Please learn it fast. Please learn it fast. I want all 26 items on the debit side and 5 items on the credit side. बेटा जिनका लर्न हो गया है वो उनको लिखना कैसे है? डेबिट साइड आपको नंबरिंग देने के 1 2 3 4 5 6 ऐसा 26 नंबर देने के, सीरियल नंबर 4 5। એટલે તમે જ્યારે લખીને મને ફોટો મોકલો એટલે મને તરત ખબર પડી જાય કેટલી આઈટમ છે ને કેટલી આઈટમ નથી. On the top of your page, on the top of your page you have to write your name and you have to write your branch. जैसे अर्शिता लिखेगी अर्शिता from कारेली बाग, विश्वा will write विश्वा from OP, कृतिका will write कृतिका। वो पेज पे तुम्हारा नाम होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों का सबमिशन हो गया। बेटा 10:31 થઈ ગયા છે, 10 મિનિટ, 10 મિનિટ પછી વી સ્ટાર્ટ। बेटा देख ले स्पेसिमेन, चल। बेटा जिनका लर्न हो गया, यस यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट, डोंट मैसेज मी, डोंट मैसेज मी, स्टार्ट राइटिंग, कम ऑन। शगुफ्ता व्हाट्स योर डाउट? शगुफ्ता अनम्यूट। सर मेरी 20 आइटम्स ही हो रही है डेबिट साइड, तो एक बार आप दिखा दो ना मुझे। एक मिनट देख लेते हैं, चलो। बेटा ऑनलाइन स्टडीज में ऐसा लग रहा है पूरे गांव को लेके पढ़ रहे हैं हम एकदम, कोई कहीं से भी कहीं भी आवाज आ जाती है। बेटा हर्ष तारो लर्न થઈ ગયું? હર્ષ ડોક્યુ અલાઈને કે નહીં થયું? હર્ષ ડોક્યુ અલાઈ, ડોક્યુ, હર્ષ પ્રજાપતિ ડોક્યુ અલાવ લર્ન થયું કે નહીં? હા હા આવી રીતે એક્સરસાઇઝ કર યાર, થોડી એક્સરસાઇઝ કર, હા ગજબ। હાર્દી, હાર્દી તારું લર્ન થઈ ગયું? ખોટે ખોટું હા પાડે છે હે ને?
अभिषेक अभिषेक लर्न हो गया अभिषेक? अभिषेक का लर्न नहीं हुआ है अभी तक, लर्न करो लर्न करो। बेटा गिव मी अ थम्स अप, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड राइटिंग द थिंग्स? गिव मी अ थम्स अप। कितने लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिनका बेटा लिखना हो जाए आर रिक्वेस्टेड टू देन सेंड द फोटो। पापा के नंबर पे फोटो भेजो। बेटा गजेंद्र लिखना शुरू किया? गजेंद्र थम्स अप दे अगर लिखना शुरू किया। बहुत बढ़िया गजेंद्र बहुत बढ़िया। वंशिका पटेल ओपी, वंशिका पटेल हैव यू स्टार्टेड राइटिंग? वंशिका वंशिका अनम्यूट, या वेरी गुड बेटा, गो अहेड गो अहेड गो अहेड गो अहेड। लिखना शुरू कर दिया है तो जाने दो जाने दो। कृष्णा कृष्णा आकांक्षा तेल अकाउंट चालू करी थी तू? आकांक्षा पुष्टि अभी भी लर्न कर रहे हैं हम। पुष्टि पुष्टि सर थोड़ा बाकी है। बेटा जल्दी कुश्ती कर, चल जल्दी। पुष्टि विल डू कुश्ती, जल्दी। बेटा सब लोग ईमानदारी से- जुनैद जुनैद हाँ सर। बेटा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? सर सोच रहा हूँ। सोच रहा है? क्या क्या सोच रहा है? नहीं वो आगे का थोड़ा भूल गया वो। तो बेटा जल्दी, यू वांट मी टू शेयर द स्क्रीन और यू हैव रिटन फॉर्मेट? सर फॉर्मेट बना दिया है, अभी ट्राई कर रहा हूँ। मतलब तूने लिख तो लिया ना, एक बार तूने लिख तो लिया ना फॉर्मेट? हाँ पक्का? हाँ। तो बेटा क्या सोच रहा है? जल्दी कर। और ये नाक क्यों बह रही है? सर वो सर्दी हो गई है। बेटा ध्यान रख, अभी तो सर्दी खांसी जुकाम ना पोसा है। हाँ सर। निधि निधि तारू लन थैंक यू निधि ठाकुर। ओके ओके ओके, ऐसा ऐसा कर डालने का तो समझ में आ जाए। ऐसा अनम्यूट अनम्यूट खेलने का नहीं, एक्सप्रेशन से बोल देने का, एक्सप्रेशन से। रोहित रोहित जादू मिला तेरे को? जादू मिला? रोहित अनम्यूट अनम्यूट। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तेरे को मिला जादू? मिला तेरे को? हाँ सर, लिख लिया। जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख चल। हाँ हाँ सर, बस हो गया। ओके हरी बोल, हरी बोल, अनम्यूट हरी बोल। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही है, हरी बोल।
कुठे गेला? हरी बोल कुठे गेला? हाँ सर, हाँ हरी बोल, किधर है तू, किधर है? घर पे। अच्छा ऐसा नहीं, याद हुआ कि नहीं वो बोलने यार। सर लिख ही रहा हूँ। लिख रहा है पक्का? ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को तू लिखते हुए यार। सर ये ना दिखाओ। हाँ मेरे को मैसेज कर, दिखा मत, मैसेज कर फटाफट हाँ व्हाट्सएप। ये सर, करता हूँ सर। करता, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ बेटा कितने दिनों के बाद मैं इतने सारे लोगों को पढ़ते हुए देख रहा हूँ, बोलो। एकदम ईमानदारी से ऐसा मुंडी नीचे करके क्या स्क्रिबल कर रहे हैं भगवान को पता। एक जन का मेरे को मैसेज आ गया, राजस ने लिख लिया है। राजस 26 आइटम અને 5। देन अक्षा फ्रॉम ओपी ऑल्सो मैसेज। अक्षा बेटा आपने नंबरिंग नहीं लिखे, अक्षा आपने नंबरिंग नहीं लिखे। मैं फोटो में गिनूं कैसे कि 26 है? ऐसे साइड में नंबरिंग करके दोबारा भेजो फोटो, साइड में नंबरिंग करके। अक्षा सेंड मी द फोटो अगेन। चलो बेटा मैसबीन का फोटो आ रहा है। ओके 26 आइटम दिख रही है, शाबाश। देन विश्वा फ्रॉम ओपी। विश्वा खाली 20 आइटम्स ही है विश्वा। वेयर इज विश्वा? अनम्यूट, अनम्यूट विश्वा। विश्वा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। विश्वा सर 26 है। अच्छा दूसरे पेज का भी फोटो भेजा है तुमने? आई एम सॉरी यार, हाँ। मैं देखा नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सर 26 છે વિશ્વાને ઉપર 26 છે। यस, सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके सर। दो पेज में लिखा, बाकी सब जनता ने एक ही पेज में घिस डाला है 26 के 26। सर आपने बोला नीटली, इसीलिए 2 पेज। नहीं नहीं बढ़िया लिखा है बेटा तुमने, जबरदस्त लिखा है, डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। चलो बाकी की सुस्त जनताएं मैसेज कब तक आएंगे? तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर अभी हम जब मिलेंगे तब हम ये पीएनएल का फॉर्मेट करने वाले हैं। मीटिंग एंड नहीं हो रहे हैं, पहले थोड़े मैसेज तो आ जाने दो मेरे को, फिर अपने मीटिंग एंड करते हैं। बाकी की जनता चलो फटाफट मैसेज भेजना शुरू करो जिनका हो गया हो, इज्जत से, ईमानदारी से। बेटा जय बोल, हरी बोल। आया नहीं तेरा फोटो, आवाज नहीं आ रही है हरी। सर आपका फोन नंबर नहीं मालूम। अरे तो अभी तो लिखवाया जाए यार, सो रहा है, देख देख लेक्चर के बीच में तो सो जा रहा है। गलत है यार, ये तो गलत है। सर बोलो ना। 8000770404। हाँ सर भेजता हूँ, 1 मिनट। हाँ भेज बेटा। I'll take some time to review the format and then I'll message you all personally about your things. Okay? So मुझे टाइम दे देना थोड़ा देखने के लिए। ऐसा नहीं धड़ाधड़ मैसेज करके सर सर मेरा क्या हुआ, सर 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 मेरा क्या हुआ, ऐसा हैरान परेशान मत करना। हम नवरे नहीं हैं, हमें दूसरे लेक्चर्स भी लेने होते हैं। सो मैं अपने फोन में तुम सबके वीडियो, तुम सबके वो इमेजेस देख के मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा। Beta, those who have written
Those who have sent me the pic can leave the meeting, beta. We meet next lecture. We do the format of profit and loss account. Those who have written the format, those who have sent the pic to me can leave the meeting. That's okay. Come on. You can leave the meeting. चलो बेटा जल्दी फोटा पाड़ के भेजना है, चलो जल्दी फोटा पाड़ के भेजना है. अक्षा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अक्षा व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर 23 हो रहा है और स्पेसिफिक अरे! 23 में 23 है. तो बेटा 3 आइटम जो नहीं है लिख पाए वो फॉर्मेट में से देख लो, लर्न सर कर लो और फॉर्मेट फिर में लिख के भेज 23 दो. है. नो प्रॉब्लम बेटा. फॉर्मेट में आपसे 23 जो है. फॉर्मेट में ही 23 है. ये तो फिर हाँ. गब्बाइनी की बात हुई. रुक जा, मैं वापस फॉर्मेट तेरे साथ शेयर कर. कौन सी आइटम खा गई हो? सर मम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता नहीं दिया तो ट्रेडिंग की 2-3 आइटम खा ली है मैंने. बेटा मैंने स्क्रीन शेयर अक्षा के लिए किया है, बाकी की सारी जनता स्क्रीन की तरफ देख देख के उठा रही है फॉर्मेट. चीटर्स. सर कैरेज इनवर्ड और रॉयल्टी भूल गई. गलत है बेटा, ये तो गलत है. अक्षा स्क्रीन शेयर किया था. जनता फायदा उठा ले रही है. जनता ने फायदा उठा लिया है. But a majority of you have sent me the pics. Now those who are still writing it, but what I'm doing is, pay attention, what I'm doing is, I'm ending up this meeting. You take 10-15 minutes more, and once you complete, please send me the photo. Please do it ईमानदारी के साथ. Please do it honestly. You learn the format, send me the pics so that I am assured that the trading account format is done from your side. And then when we meet in the next week, we'll start with profit and loss account format. Okay. Okay. Beta, now I am allowing you to unmute yourself. Everybody can unmute yourself. Hi, sir. Bye, बोल दो. Bye, सर कल नहीं है क्लास. बेटा शेड्यूल में देख, शेड्यूल में देख, ऐसे सवाल मत पूछ. शेड्यूल बाय देख. सर. ओके. Bye. Bye.